Hello guys, today we are going to discuss the most important MCQs from chapter Light Reflection and Refraction. So grab your notebooks and let's get started with our first MCQ. Which of the following statement is true regarding reflection of light? The option first is the angle of incidence is always greater than angle of reflection. The angle of incidence is always equal to angle of reflection. So this question is related to the angle of incidence and angle of reflection. So before starting or before solving this question, let's discuss what is the meaning of angle of incidence and angle of reflection. So let us consider we have a mirror, a plane mirror. Okay, this surface is polished and painted. Okay, so if a light ray reaching towards the mirror is known as what? Incident ray, and the light which is moving away from the mirror is known as what? Reflected ray. And this point at which the incident ray strikes the mirror is known as what? Point of incidence. Okay, और इसी point of incidence पे perpendicular एक line होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Normal. Okay, and why it is known as normal? Because the meaning of normal is what? Perpendicular. Okay, so this line is what? This ray is what? Incident ray. This ray is what? Reflected ray. This one is what? Normal. So what is angle of reflection? The angle of reflection is what? The angle between incident ray and normal. So this angle must be what? Angle of incidence. और अगर इस angle के बारे में बात करें, which is the angle between reflected ray and normal, this angle is known as what? Angle of reflection. So हम लोगों ने पढ़ा है पहले कि laws of reflection ये बोलता है, the first law of reflection is what? Angle of incidence must be equal to angle of reflection. It means अगर angle of incidence आपके पास 30 डिग्री है तो angle of reflection भी कितना होगा आपके पास? 30 डिग्री. It means अगर यहाँ पर आपके पास 20 डिग्री एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा आपके पास? 20 डिग्री. Okay, and what is second law of reflection? Yes, that is all lies on same plane. Okay, what is second law of reflection? That is all lies on same plane. So what are that all? That is incident ray, reflected ray, normal and point of incidence. ये चारों पैरामीटर एक ही प्लेन पर लाई करते हैं. That is what? Second law of reflection. Okay, और आपको प्लेन पता होंगे कितने प्लेन्स हमारे पास? We have 3 planes: XY plane, YZ plane and ZX plane. Okay, so let's go for a question. The question is, which of the following statement is true regarding the reflection of light? The first statement, the angle of incidence is always greater than the angle of reflection. नहीं. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. क्या हमेशा इक्वल होता है? Yes, इसको मान सकते हैं अभी हम लोग. थर्ड ऑप्शन बोल रहा है the angle of incidence is always smaller than the angle of reflection. नहीं. The angle of incidence and angle of reflection are not related. They are related. They are equal to each other. Okay. So option B, that is second option is correct. That is I is always equal to R. Okay. Let's go for the next question. The angle of incidence for a light ray incident on a plane mirror is 30 degree. Okay. So angle of incidence किसी भी plane mirror पर जो light incident हो रही है उसके लिए angle of incidence कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है. Then what will be the angle of reflection? तो अभी हम लोगों ने जस्ट अभी बात करी that angle of incidence is always equal to angle of reflection. So what will be the angle of reflection? It will be 30 डिग्री. तो जो angle of incidence होगा वही आपके पास angle of reflection होगा. तो what is our answer here? That is 30 degree. Let's go for the next question. The image formed by a concave mirror is always virtual, erect and diminished. What is the meaning of diminished? Diminished जिसका साइज बहुत छोटा हो. इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, ऑलवेज वर्चुअल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज, डिमिनिश मतलब वही छोटी इमेज, समटाइम्स रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, ऑलवेज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. ओके, तो पहले एक बार बात कर लेते हैं हम लोग कि कॉन्केव मिरर इमेज कैसे फॉर्म करता है. ओके, सो कंसीडर करें हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है. ओके, सो लेट अस कंसीडर वी हैव अ कॉन्केव मिरर. ओके, कॉन्केव मिरर किसको बोलते हैं? इस टाइप का मिरर होता है जो बाहर से पॉलिश्ड और पेंट होगा. ओके, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये हम लोगों का क्या हो गया? फोकस. कॉन्केव मिरर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज व्हाट? कन्वर्जिंग मिरर. कौन सा मिरर बोलते हैं इसको हम लोग? कन्वर्ज. तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं. और कौन से मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं? कॉन्केव. सो कॉन्केव मिरर में जब हम लोग इमेज बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो सकती है? क्या क्या पोजीशन हो सकती है? एक तो हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? इन्फिनिटी पर रखा हो. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो याद रखना इमेज बनती है फोकस पे. जब भी ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे. और ये डिमिनिश्ड इमेज होती है.
कैसी इमेज होती है, डिम, बहुत छोटी इमेज होती है। और जैसे जैसे देखो इंफिनिटी मतलब बहुत दूर रखा है, ओके, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कम होती है, मतलब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर तरफ आता जाता है, ओके, तो उसकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम। तो यहाँ पर एक पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, एक पोजीशन यहाँ पर हो सकता है ऑब्जेक्ट आपका, एक बार आपका ऑब्जेक्ट यहां हो सकता है, एक बार यहां हो सकता है, एक बार यहां हो सकता है और एक बार यहां। तो टोटल कितनी पोजीशंस हो गई आपके पास ऑब्जेक्ट्स की, दैट इज 1 2 3 4 5 6, ओके। तो अगर यहां हम लोग इस चीज को कंसिडर करें तो इन 6 पोजीशंस में इमेज कहां कहां बनेगी उसके बारे में बात करें, ओके। सो ये हम लोग पास हो गया फोकस, ये हो गया हम लोग सेंटर कर्वेचर। तो अगर ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी पे रखूं तो इमेज कहां बनेगी, वेरी गुड, कहां पर बनने वाली है इमेज आपके पास, फोकस पे बनने वाली है। अगर ऑब्जेक्ट को यहां रखूं, दैट इज व्हाट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, केस कहां रखे हम लोग, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्वियसली हम लोगों को आई थिंक रूल्स पता होगा कि मूव पैरेलल एंड पास थ्रू द फोकस, और सेकंड रूल क्या बोलता है, पास थ्रू द फोकस एंड मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां जो इमेज बनने वाली कैसी बन रही है, रियल इमेज। तो याद रखना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर कर्वेचर, ये सभी जगह इमेज जो बनती है आपकी कैसी इमेज बनती है, रियल। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में होगा, जब भी ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में, उस टाइम जो कॉन्केव मिरर है वो आपको कौन सी इमेज बना के देगा, वर्चुअल। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्केव मिरर आपको रियल इमेज भी बना के दे रहा है और साथ में कौन सी इमेज बना के दे रहा है, वर्चुअल। रियल इमेज कब बनेगी, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस से दूर रखा हो, बियॉन्ड फोकस रखा हो। और वर्चुअल कब बनेगी, जब फोकस और पोल के बीच में रखा हो, ओके। तो कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है और रियल इमेज बनाता है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखें हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, क्या हमेशा वर्चुअल बनाता है, नहीं भाई। नेक्स्ट बोल रहा है ऑलवेज वर्चुअल, अच्छा ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, नहीं। ऑलवेज वर्चुअल इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड तो हो नहीं सकती, ओके। एंड डिमिनिश्ड, नहीं, ओके। याद रखना वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होगी, और इन्वर्टेड कौन सी वाली होगी आपके पास, रियल इमेज, ओके। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है समटाइम्स रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, मान सकते हैं। ऑलवेज रियल इन्वर्टेड, नहीं, ऑलवेज बात कर रहा है मतलब हमेशा तो नहीं बनाएगा, ओके। तो कभी कभी रियल और इन्वर्टेड डिमिनिश्ड बनाता है क्या, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बना सकता है क्या, चारों ऑप्शन। तो ऑलवेज वर्चुअल, नहीं, ऑलवेज वर्चुअल, नहीं। कॉन्केव मिरर की बात करें कन्वर्जिंग, ऑलवेज रियल इन्वर्ट, नहीं। तो समटाइम्स रियल इन्वर्ट एंड डिमिनिश्ड बोल सकते हैं हम लोग। सो अमंग दिस 4 ऑप्शंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, आपको पता होगा कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके। रेनबो फॉर्मेशन का कुछ थोड़ा शॉर्ट में हम लोग समझे तो जब भी मॉइस्चर होता है एयर में, एयर में क्या होता है बेटा, मॉइस्चर होता है, उस कंडीशन में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होंगे एयर के अंदर, ओके। तो वहां से जब सनलाइट्स आएगी और उससे जब पास होगी तो बेसिकली ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये लेंस के जैसे बिहेव करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, लेंस के जैसे बिहेव करेंगे, बोल सकते हैं स्फेरिकल लेंस के जैसे बिहेव करेंगे, ओके। तो ये लेंस के जैसे बिहेव करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे ये जो व्हाइट लाइट है वो कितने कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में। कितने कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में। 7 कलर्स कौन सा हो गया, विबग्योर, दैट इज VIBGYOR। व्हाट इज V रिप्रेजेंटिंग वायलेट, I is what, indigo, B is blue, G is green, Y is yellow, O is orange, R is what, red, ओके। तो ये व्हाइट लाइट का जब 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी में क्या फॉर्मेशन होता है आपका, रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो उसमें क्या क्या प्रोसेस लग रही है उसके बारे में बात करें हम लोग, ओके। तो 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर, ओके। तो सबसे पहला ऑप्शन आया रिफ्लेक्शन। क्या रेनबो फॉर्मेशन में रिफ्लेक्शन होता है, नहीं। रिफ्लेक्शन, यहां लाइट टकरा के उसी मीडियम में जाने का तो कोई लॉजिक है ही नहीं हमारे पास, ओके। तो रिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्या रिफ्रैक्शन होता है, क्या मीडियम चेंज हो रहा है लाइट का, यहां पर जब भी रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या मीडियम चेंज हो रहा है, यस, मीडियम चेंज हुआ कब, क्योंकि यहां जब लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, एयर से कहां पे जा रही है, वाटर, तो यहां पे रिफ्रैक्शन तो हो रहा है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम लोग डिस्पर्जन। नेक्स्ट इज व्हाट, डिस्पर्जन। आई थिंक डिस्पर्जन का मतलब आपको पता होगा, डिस्पर्जन वो फिनोमिना है जहां पर यह बोला जाता है कि व्हाइट लाइट कितने कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, 7 कलर में। द फिनोमिना इन विच द व्हाइट लाइट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ इन 7 कलर। तो क्या यहाँ पे एक कलर के 7 कलर बन रहे हैं, यस। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट लग रहा है। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर थोड़ा सा याद करें हम लोग या फिर एक बार डिस्कस कर लेते हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली एक रिफ्रैक्शन का टाइप है,
ये किसका टाइप है? रिफ्रैक्शन का टाइप है, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, व्हाट डज दैट मीन? क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे अगर लाइट गई, क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा एंगल पे अगर लाइट गई, तो वहां पर क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम में रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन ये प्रोसेस कौन सी है? किसकी है? रिफ्रैक्शन की। ओके, तो फिर से डिस्कस करें हम लोग, क्या रेनबो फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन काम कर रहा है? नहीं। क्या रिफ्रैक्शन काम कर रहा है? यस। क्या डिस्पर्जन काम कर रहा है? यस। क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी काम करता है? यस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी यहां पर काम करता है, जो शाइनिंग ऑफ डायमंड में यूज होता है। कहां पर यूज होता है? शाइनिंग ऑफ डायमंड। इस पे हम लोग इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है हम लोग ऑप्टिकल फाइबर भी यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स एक ऐसी केबल है जहां पर लाइट के फॉर्म में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। किसके फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ऐसे पर्टिकुलर केबल को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, जो कौन से प्रिंसिपल वर्क करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो जो रेनबो फॉर्मेशन है वो तीनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। रिफ्रैक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्पर्जन पे भी डिपेंड कर रहा है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि एमसीक्यूज में मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statement is true regarding the speed of light in vacuum? Okay, speed of light in vacuum के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें what is the speed of light in vacuum? Basically it is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. That is the speed of light in vacuum. Okay, और vacuum को हम लोग rarest medium बोलते हैं। कौन सा मीडियम बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? rarest। इससे रेयर कुछ हो भी नहीं सकता। Is that clear? तो स्पीड ऑफ लाइट यहां पे सबसे ज्यादा होती है, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट? 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, जो कहां पर होती है? वैक्यूम में होती है। ओके, तो क्वेश्चन है आपके पास कि which of the following statement is true regarding the speed of light in vacuum? So I'm writing the speed of light here again. Okay, so कौन सा स्टेटमेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से रिगार्डिंग करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इट इज कांस्टेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रही है। ओके, इट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हाँ, ये बात तो है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में तो कांस्टेंट रहेगी ना। वैक्यूम में ही लाइट अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगी। लाइट स्पीड कब चेंज करती है? जब वो मीडियम चेंज कर रही है। लेकिन इटसेल्फ वैक्यूम के बारे में बात करें तो क्या वहां पर वो कांस्टेंट होगी? यस। क्या इंडिपेंडेंट होगी वेवलेंथ के? यस। याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। कौन वेवलेंथ पे डिपेंड करता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को मान सकते हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इट वरीज विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। नो, इट वरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कि फॉर एग्जांपल नून टाइम बात करें हम लोग, एक बार नून टाइम बात करें हम लोग, और एक बार हम लोग इवनिंग टाइम बात करें। ओके, तो दोनों टाइम इंटेंसिटी लाइट डिफरेंट होती है। नून में ज्यादा इंटेंसिटी होती है लाइट की, हम लोग स्काई की तरफ देख भी नहीं सकते। इवनिंग में लाइट थोड़ी सी कम होती है, तो इंटेंसिटी अगर कम ज्यादा हो रही है तो क्या स्पीड ऑफ लाइट पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। याद है ना, इंटेंसिटी से स्पीड ऑफ लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इट वरीज विद द डायरेक्शन ऑफ लाइट। नहीं भैया, ना तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज इट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में, वो हमेशा वैक्यूम में तो कांस्टेंट रहेगी और वेवलेंथ पे वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अ कॉन्केव मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड फोकस। अभी बात करिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां रखा बेटा? हम लोगों ने बियॉन्ड फोकस। तो फिर से बात करें, ये आपके पास कॉन्केव मिरर हो गया, ये हो गया आपके पास फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी जस्ट हम लोगों ने बात करी कि अगर फोकस से इस साइड अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा तो ये जो इमेज बनने वाली कैसी इमेज बनेगी? रियल। फोकस से इधर अगर बना रखा हम लोगों ने तो यहां जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल। ओके, तो कॉन्केव मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड इट्स फोकस। द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड। ओके, तो बियॉन्ड फोकस रखा है तो इमेज रियल तो बनेगी। ओके, रियल बनेगी मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्चुअल के बारे में। इन दोनों ऑप्शन के बारे में बात करें, क्या रियल इमेज बनेगी? क्या इन्वर्टेड होगी? क्या रियल इमेज उल्टी होती है? इन्वर्टेड अभी बात करिए हम लोगों ने, याद रखा रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, वर्चुअल आपके पास सीधी होती है। ओके, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, करेक्ट बोल रहा है। क्या मैग्निफाइड होगी? यस।
मैग्नीफाइड मतलब उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, फिर क्या बोला, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड बाय द concave mirror when if the object is placed beyond its focus. So let's go for the next. The phenomena of bending of light as it pass from one medium to another medium. Okay, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रांसमिट होती है तो वो बेंड हो जाती है, चाहे या तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी. द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, refraction, diffraction और dispersion. So the answer B is correct, that is refraction of light. क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, बेंडिंग हो रही है, तो उसको क्या बोलेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस. तो सबसे पहले हम लोग बात करें पावर ऑफ लेंस होता क्या है. बेसिकली इट इज नोटेड बाय व्हाट, P. ओके, सो पावर ऑफ लेंस होता है चश्मे का नंबर. अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपके चश्मे का जो नंबर है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस. तो कल से आपसे अगर कोई पूछे कि आपके चश्मे का नंबर क्या है, तो बोलना ये चश्मे का नंबर नहीं है भाई, ये पावर ऑफ लेंस है. ओके, तो ये पावर ऑफ लेंस को डिनोट करते हैं हम लोग P से, और इसकी वैल्यू होती है दैट इज व्हाट, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. P इज इक्वल टू व्हाट, 1/f. अब मैं इसको बोल रहा हूं लेंथ, और लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में. लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में. तो अगर इसकी SI यूनिट के बारे में बात करें, फोकल लेंथ की SI यूनिट क्या हो गई, मीटर. तो मीटर ऊपर जाके हो जाएगा बेसिकली मीटर इनवर्स. क्या रीड करते हैं इसको हम लोग, मीटर इनवर्स. तो पावर ऑफ लेंस की SI यूनिट क्या हो गई, मीटर इनवर्स. इसी मीटर इनवर्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज व्हाट, डाइऑप्टर. तो याद रखना, 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1 डाइऑप्टर. ओके, सो द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज व्हाट, डाइऑप्टर, मीटर, वॉट और जूल. यस, इट इज डाइऑप्टर. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. Which of the following statement is true regarding the focal length of the convex lens? ओके, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के लिए करेक्ट है. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज ऑलवेज जीरो. तो याद रखना, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव. याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस हो या चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. वहीं पे अगर आपके पास कौन सा लेंस हो, या तो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर आपके पास कॉन्केव मिरर हो, या तो आपके पास कॉन्केव लेंस हो या फिर कॉन्केव मिरर हो, इसकी फोकल लेंथ आपके पास हमेशा क्या होने वाली है, नेगेटिव. इज दैट क्लियर. वो क्यों होता है, द रीजन इज साइन कन्वेंशन. द रीजन इज व्हाट, साइन. साइन कन्वेंशन जब फोकल लेंथ निकालते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है और कॉन्केव की हमेशा नेगेटिव. तो हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी यूज करते हैं कि कॉन्वेक्स के लास्ट में एक्स आता है. कॉन्वेक्स के लास्ट में क्या आता है, एक्स आता है, एंड दिस एक्स इज लुक्स लाइक व्हाट, पॉजिटिव. याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस हो या चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इसकी जो फोकल लेंथ होने वाली है वो हमेशा क्या होने वाली है, पॉजिटिव. तो यहाँ क्वेश्चन है, which of the following statement is true regarding the focal length of convex lens? Okay, so it is always positive. Yes, it is always negative. नहीं, it can be either positive negative. No, ये कभी positive negative नहीं होगी. It is always zero. नहीं. Okay, so what is the focal length of convex lens? It is always positive. So what about the focal length of concave lens? It is always negative. Let's go for the next. An object is placed 20 centimeter in front of concave mirror. ओके, तो आपके पास एक कॉन्केव मिरर है. ओके, कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. तो एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितने डिस्टेंस पे दे रखी है बेटा, 15 सेंटीमीटर दे रखी है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर. मतलब कि अगर उसका फोकस 15 पर है तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने 15 से ज्यादा पे रखा है. कैसे, 20 पे रखा है. ओके, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मुझे बताओ, ये फोकस और पोल के बीच में या बियॉन्ड फोकस है. यस, कहां है, बियॉन्ड फोकस. और अभी जस्ट हम लोगों ने बात करी कि कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड फोकस जब रखेंगे, कहां रखेंगे आप, बियॉन्ड फोकस जब रखेंगे, तो वहां जो आपके पास इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी बेटा, रियल बनेगी. इट मींस अगर फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगर 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर रखी, आपने 10 सेंटीमीटर रख दी, तो इमेज आपके पास बनेगी क्या, वर्चुअल. 15 की जगह आपने 16 रख दिया, 20 रख दिया, 25 रख दिया, यहां जो इमेज बनने वाली है आपके पास कैसी बनने वाली है, रियल. सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर of focal length 15 centimeter, the image formed will be real, inverted, magnified,
रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड, वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि किसके बारे में बात करा, वर्चुअल। तो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड, यस रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज यहाँ पर क्या होने वाली है, बनने वाली है। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। The critical angle for a medium is defined as the angle of incidence at which the refracted ray is parallel to the surface of medium, the refracted ray is perpendicular to the surface of medium, the angle of refraction is 90 degree, total internal reflection occurs. ओके, तो यहाँ एक बार बात करते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, क्योंकि एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया था रेनबो वाले क्वेश्चन में, लेकिन वहां हम लोगों ने उसको डीप में डिस्कस नहीं किया था। तो अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें किसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। ओके, सो बात करें हम लोग, हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन। सबको पता है दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, और जब मीडियम चेंज होता है लाइट का, जब मीडियम चेंज होता है लाइट का, तो वहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ओके, सो कंसिडर करें कि एक सरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रही है, एक सरफेस है जो दो मीडियम को क्या कर रही है, अलग कर रही है। मान लो ऊपर वाला जो मीडियम है वो रेयर है और नीचे वाला मीडियम जो क्या है आपके पास, डेंसर। थोड़ा ध्यान समझना। ओके, नीचे वाला जो मीडियम क्या है आपके पास, डेंसर है, ऊपर वाला क्या है आपके पास, रेयर है। अब लाइट बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं ना, जब लाइट आपकी ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहां देखना मैं बात कर रहा हूं कि उस लाइट की बात कर रहे हैं जो नीचे से ऊपर जा रही है, जो कहां से कहां जा रही है बेटा, नीचे से ऊपर जा रही है। ओके, अच्छा लीव बेटा, आई थिंक वो कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो हम लोग कॉमन बात पे ही बात करेंगे इसमें। ओके, अगेन फिर से कंसिडर करना, एक सरफेस है हमारे पास, ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे आपके पास क्या है बेटा, रेयर मीडियम है। ऊपर कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, नीचे क्या है आपके पास, रेयर मीडियम है। तो लेट अस कंसीडर एक इंसिडेंट रे आ रही है एक सरफेस, इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होने वाला बेटा, एक नॉर्मल होने वाला है। तो जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये पता होगा आपको कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर जाएगी, तो लाइट कहां से कहां ट्रेवल करेगी, अवे। इसका मतलब ये है कि जब रेयर से डेंसर जाएगी तो वो कहां से कहां जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। ओके, तो लाइट अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो इट विल टिल्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो गया आपके पास, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगर मान लो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं, समझना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा मतलब ये वाली लाइट को नीचे शिफ्ट करूंगा। अगर इस लाइट को नीचे शिफ्ट करूंगा तो क्या ये लाइट ऊपर शिफ्ट होगी, इसको मैं थोड़ा और नीचे शिफ्ट करूंगा तो क्या है, थोड़ी और शिफ्ट होगी। इसको थोड़ा सा और मैंने नीचे शिफ्ट किया तो क्या एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये जो लाइट है इस सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। आया समझ में, मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इस सरफेस के, इंसिडेंट सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। जब ये इसके पैरेलल हो जाएगी तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आया समझ में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपके पास, 90 डिग्री। और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा उस टाइम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा उस टाइम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्रिटिकल एंगल, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई सी। तो आई सी इज व्हाट, क्रिटिकल एंगल, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90। अब अगर फॉर एग्जांपल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, क्रिटिकल एंगल वो एंगल जब एंगल कितना हो गया, 90, तो अगर उस एंगल से और ज्यादा अगर मैंने इसको इधर शिफ्ट किया तो लाइट इस मीडियम में आने की बजाय वापिस उसी मीडियम में चल जाएगी, मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई थिंक थोड़ा समझ में आया होगा। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन बोल रहा है क्रिटिकल एंगल, वही क्रिटिकल एंगल दैट इज आई सी, जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री। ओके, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ मीडियम। यस, याद करो, सरफेस के पैरेलल हो गई थी रिफ्रैक्टेड रे। द रिफ्रैक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मीडियम। देखो ये सरफेस ऑफ मीडियम है। ओके, ये आपके पास नॉर्मल था, ये आपके पास इंसिडेंट एंगल मान लो क्रिटिकल एंगल आईसी होगा, तो ये जो डायरेक्शन होगी इसके अलोंग ये क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। अब ये बोल रहा है द रिफ्रैक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आ रही है सरफेस के परपेंडिकुलर है, नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। यस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट, 90 डिग्री। तो ये भी ऑप्शन लग रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी लग रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स, क्या यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यस। ओके, तो ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। या तो बोल सकते हैं पैरेलल हो जाएगी, या 90 डिग्री हो जाएगी, या इस फिनोमिना को बोलेंगे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
Okay, let's go for the next. A convex lens of focal length 20 centimeter is used to form an image of an object placed 40 centimeter in front of it. Okay, एक convex lens है, इसकी फोकल लेंथ कितनी रखी है 20 सेंटीमीटर रखी है, और ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर रखा हम लोगों ने 40 सेंटीमीटर पे. द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, नेचर मतलब कि रियल या फिर वर्चुअल. तो एक बार हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस कर ले क्या. ओके, तो जैसे कॉन्केव मिरर आपका कन्वर्जिंग होता है, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग होता है. ओके, तो इसको बाईफोकल बोलते हैं, दो फोकस होते हैं. तो फॉर एग्जांपल में बोलते हैं F1 है, ये क्या है C1 है, ये F2 हो गया, ये क्या हो गया C2. फोकस कितने डिस्टेंस पर रखा है 20 पे. और ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं बेटा हम लोग, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं हम लोग 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट को रखा है हम लोगों ने कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. अगर सिंपल सा रे डायग्राम याद करें, मूव पैरेलल एंड पास थ्रू द फोकस. एंड सेकंड वन इज व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाए हम लोग, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से आप सीधे निकलेंगे तो यहां जो इमेज बनेगी, थोड़ा सा लाइट टेढ़ी बन रही है ना. ओके, इसको कंसिडर मत करना. ओके, आई एम नॉट दैट मच गुड इन यूजिंग दिस पेन टेप. ओके, सो यहां देखें हम लोग, यहां इमेज बन रही है. ओके, तो ये जो इमेज बन रही है क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है. ओके, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है और ये उल्टी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है. तो ये कौन सी इमेज बन रही है, रियल या वर्चुअल, रियल इमेज बन रही है. ओके, तो बात करें हम लोग कि अगर फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखा है 40 पे, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी. ओके, तो ये दो ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकते. तो जब तुक्का मारने की बात हो ना, तो इन दोनों में तुक्का मारेंगे हम लोग. ओके, दैट इज नोन एज व्हाट, मेथड ऑफ एलिमिनेशन. उन ऑप्शंस को अलग कर दो जो आंसर हो ही नहीं सकते. ओके, तो आपके पास तुक्का लगाने या गेस करने के लिए ऑप्शंस थोड़े से कम बच जाएंगे. ओके, लेकिन याद रखना, जिसमें आपको लगता है ना ये आंसर नहीं हो सकता, कभी कभी आंसर वहीं आता है. ओके, चलो, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते. ओके, तो रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इन्वर्टेड, रियल रियल. ओके, मैग्नीफाइड डिमिनिश, तो छोटी इमेज बन रही क्या, नहीं बड़ी इमेज बन रही मैग्नीफाइड. तो आंसर ए इज करेक्ट हियर. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे ड्यू टू, कलर ऑफ स्काई आपको डे टाइम ब्लू दिखता है, बोलते हैं ना स्काई ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी. ओके, क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज व्हाट स्काई ब्लू, जिसको हम ब्लू बोलते हैं. ड्यूरिंग द डे क्यों होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट और एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट. तो इसको तो छोड़ ही दो. ओके, रिफ्लेक्शन के बारे में बात करो तो रिफ्लेक्शन नाम की कुछ चीज हो नहीं रही. रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें, जहां रिफ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है किसकी, डिस्पर्जन. क्योंकि यहाँ पर आपको एक कलर दिख रहा है. जब भी कलर से रिलेटेड बात आए तो बात करना किसकी, डिस्पर्जन. और डिस्पर्जन वो फिनोमिना है जिसमें एक व्हाइट लाइट कितने कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, 7 कलर्स में. याद करो कौन कौन से कलर थे, यस, विबग्योर, VIBGYOR. ओके, तो 7 कलर डिस्ट्रीब्यूट होने की प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन. तो हम लोगों को जो स्काई ब्लू ब्लू दिखता है ना, ओके, वो किसके कारण दिखता है, दैट इज व्हाट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. द पावर ऑफ कॉन्केव, अभी जस्ट बात करी थी पावर ऑफ लेंस, किससे डिनोट करते हैं पावर ऑफ लेंस को, P से. क्या था फॉर्मूला इसका, P इज इक्वल टू 1/f. ओके, क्या इसकी एसआई यूनिट थी, डाइऑप्टर. ओके, चश्मे का नंबर. द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. एक ऐसा कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है बेटा आपके पास, 10 सेंटीमीटर. उसका पावर क्या होगा, तो हम लोग पावर का फॉर्मूला हमको पता है, P इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 1/f. लेकिन यहां ध्यान रखना थोड़ा सा, कहां बताऊं, ये यहां पर ये बात कर रहा है कौन से लेंस की, कॉन्केव. और कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको हम लोग हमेशा क्या लेके चलते बेटा, नेगेटिव. अभी जस्ट बात करिए कॉन्वेक्स को कैसे याद करेंगे, लास्ट में x आता है, x इज लुकिंग लाइक व्हाट, प्लस. तो कॉन्वेक्स जब भी वर्ड आए तो उसकी फोकल लेंथ क्या लेके, पॉजिटिव. तो बचा कौन, कॉन्केव. तो कॉन्केव की फोकल लेंथ आप हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव. तो P इज इक्वल टू क्या लेंगे, 10 लेंगे, -10 लेंगे, यस -10, 1/-10. अब देखो ये 10 आपका किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में. ओके, और हम लोगों ने बात करी थी कि 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डायोप्टर. ओके, तो ये बेसिकली सेंटीमीटर में. तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाय 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है. ओके, तो जब इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 क्या हो जाए कैंसिल, नीचे क्या बच रहा 10. तो नीचे के नीचे वाला कहां चले जाता है, ऊपर. तो ऊपर गया कितना 10, और ये माइनस साइन भी उसके साथ जब चले जाएगा. ओके, तो कितना है इसका पावर आपके पास 10 और -10, यस -10. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज व्हाट -10 डायोप्टर. देखो -10 भी दे रखा है, +10 भी दे रखा है. अगर ये कॉन्वेक्स होता तो आपका आंसर क्या होता, +10. लेकिन ये कॉन्केव है तो क्या होगा आपके पास, ये -10 डायोप्टर. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. An object is placed at the distance of 30 centimeter from the convex lens of focal length 20 centimeter. देखो रिलेटेड क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ है और 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है. अगर 20 से कम डिस्टेंस पर रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी, 20 से ज्यादा मतलब कि
फोकल लेंथ से ज्यादा पे रखेंगे, फोकस से बाहर रखेंगे तो क्या बनेगी आपके पास? रियल इमेज। तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। बचा कौन सा? आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन ही है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश। आंसर इज व्हाट? रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। ओके, सो थैंक यू गाइस, आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।